शांत गांव, खूबसूरत समुद्री तट और कुंवारी प्रकृति से सराबोर मध्य अंडमान का रंगत द्वीप। समुद्री रास्ते से बोट के जरिए 90 किलोमीटर और सड़क मार्ग से 170 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से वन विभाग के नौका पर सवार हम चल पड़े समुद्री कछुओं की नेस्टिंग्स यानी कि अंडे देने की जगह के लिए मशहूर कटबट बे बीच की ओर। रंगत जेटी से लगभग 20 किलोमीटर पूर्व की तरफ कटबट बे समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिहाज से एक महत्वपूर्ण इलाका है। We are right now at the Katbat Bay Wildlife Sanctuary, and this is the Daninala, and this is the mouth. The Katbat Bay Sanctuary is basically 5.82 square kilometers area, and we've got about 8 kilometers of sandy beach, and this is 0 point, and it's famous for one of the best turtle nesting beaches. 10.2 kilometers stretch of beach where we have got intermediate some rocky stones and all. Otherwise 8 kilometers we have got a good sandy beach. And this plantation, as you see, like of the casuarina, it invades the beach, and slowly in the eco restoration program we are removing the small saplings so that the beach length is not reduced. Died, and the fallen trees are being removed, and slowly the beach area is being reclaimed by the littoral forest species like your sea maua, poon, Canophyllum, Inophyllum, Curranch, and Barringtonia. We are planting and reclaiming the areas. Jurisdiction of Wildlife Division 2 starts from Bartang to Lamia Bay, and this sanctuary, Katbat Bay, falls under Middle Andaman with 10.2 stretch of beach where we have got 8 kilometers of sandy beach and some intermediate rocky patch. This sanctuary is basically one of the best turtle nesting sites where olive ridley and green sea we get regular turtles coming for nesting. The nesting season starts from November to March, April. जमीनी कछुओं से भिन्न समुद्री कछुए अपने सर को अपने खोल में नहीं छुपा पाते, जिस वजह से सुरक्षा के लिहाज से इनको अपने कवच, बड़े आकार और सर और गर्दन पर बने मोटे शल्कों के आवरण पर निर्भर करना पड़ता है। कटबट बे बीच ऑलिव रिडली प्रजाति के समुद्री कछुओं का एक पसंदीदा प्रजनन क्षेत्र है। बीच का रेतीला तट इनके लिए आदर्श नर्सरी का काम करता है। Turtles, which they come for the nesting, they lay the eggs and then they go away, and these nests are being shifted to these artificial hatcheries with the same kind of depth. The eggs are being transferred to the hatchery without disturbing the orientation, and we again put these eggs into this hatchery, and it takes around 40 to 45 days for the hatchlings to come out. We again release the hatchlings to the sea. वैसे तो हर कछुआ सावधानी पूर्वक अंडे देने के लिए जगह का चुनाव करते हैं, बावजूद इसके इनके अंडों को काफी वजह से खतरा बना रहता है, जिनमें तटों पर अंडों की तलाश में भटकते हुए कुत्ते, सुअर, गोल, समुद्री सांप, चील और कौवे शामिल हैं। पर इनके लिए सबसे बड़ा खतरा मनुष्यों द्वारा कछुआ मांस और अंडों के लिए किए जाने वाला अवैध शिकार है। वन विभाग के कर्मचारी सीजन के दौरान रात को बीच पर गश्त लगाते देखे जा सकते हैं। कभी कछुए के पद चिन्हों का पीछा कर, कभी समंदर से आती मादा कछुए पर नजर रख के वन कर्मी उसके घोंसलों का पता लगाते हैं।
ऑलिव रिडली कछुआ समुद्री कछुओं में छोटी प्रजाति का है, जिनकी औसत लंबाई 22 से 31 इंचेस और औसत वजन 100 पाउंड तक का होता है। इनका आवरण ऑलिव यानी सलेटी रंग का और पेट का हिस्सा भूरे सफेद रंग का होता है। एल्गे और छोटे शेलधारी जीव, जिनमें छोटे केकड़े, झींगे, लॉबस्टर्स इत्यादि शामिल है, इनका मुख्य आहार है। 2012 onwards, regularly, all the last 3 years, we are getting mass nesting of the olive ridleys in the sanctuary, a place called Arguna. It's 4 kilometers from the 0 point, and there last year we got 9,745 olive ridley turtles, about within a span of 2 to 3 days, where every night nearly more than 2,000 to 2,500 turtles used to come per night. प्रजनन काल में ऑलिव रिडली 35 से 40 सेंटीमीटर के व्यास वाले 2 से 3 गड्ढों में लगभग 150 से 160 अंडे देते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वैसे तो कछुए कई सारे तटों पर आते रहते हैं, पर कटबट बे बीच खास तौर पर इनका पसंदीदा इलाका है। सुव्यवस्थित शरीर और पट्टिका की तरह पैरों की सुविधा से ये सरीसृप महासागरों को आसानी से नेविगेट कर लेते हैं। सूरज की गर्मी इनके अंडों को सेकती है और अंडों से नन्हे कछुए 50 से 60 दिनों में निकल आते हैं। कछुओं का लिंग रेत के तापमान पर निर्भर होता है। अगर तापमान 29.9 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हुआ तो अंडों में से मादा बच्चे निकलते हैं, और अगर तापमान 29.9 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हुआ तो नर कछुए पैदा होते हैं। अंडों से बाहर निकलते ही ये बच्चे सहज प्रवृत्ति से तुरंत ही समुद्र का रुख कर लेते हैं। अंडों को यहाँ अलग अलग बाड़ों में रखा जाता है। कछुए की प्रजाति, अंडे देने की तिथि, अंडों की संख्या और जरूरी सूचना हर एक घोंसलों के साथ साथ दर्ज कर ली जाती है। पिछले कुछ दशकों में इनकी आबादी में आई गिरावट को देखते हुए 1996 में वन विभाग द्वारा इनके संरक्षण और आबादी बढ़ाने के इरादे से टर्टल मॉनिटरिंग यानी कि कछुआ निगरानी परियोजना शुरू किया गया। Apart from this protected area, all through the north and middle, if you look, we have got outside protected areas also where this turtle nesting takes place. In Karmatang Beach in Mayavandar, and then towards the Diglipur side we have got in Ramnagar and Lamia Bay, Ross and Smith and Kalipur. All these beaches except Ross and Smith is a protected area since Ross Island is a sanctuary, and the foothills of the Saddle Peak, Lamia Bay, where we have sighted nesting last 2 years back, and there also we have created all these places. We have got such hatcheries, and consistently we are getting the turtle nesting in this Ramnagar and Kalipur and all these sites. कोई नहीं जानता कि इन कछुओं का प्रवास कब और कैसे निर्धारित होता है। ये शायद समुद्री हवाओं से दिशा पाते हैं, या शायद चांद के चक्र पर निर्भर होता है इन कछुओं का प्रवासीय चक्र। समुद्री तटों पर अंडों से निकलने के बाद सिर्फ अंडे देने के लिए लौटकर आना एक दिलचस्प घटना है, जो आज भी वैज्ञानिक समुदायों में एक रहस्य बना हुआ है। ये एक ऐसा सिलसिला है जो कई सदियों से निरंतर चला आ रहा है।